Okay, so before everyone else is joining, let's have some discussion about how you are giving mocks and how much are you scoring. So definitely use your chat option, so that will so that way I can get better. How can I help you and how this session will help you in increasing your marks. So everyone who has given any mocks like government job and anything, they can share their marks and the portion, the area in which they think they can do better and they are lacking. So the this session will mainly emphasize on the three topics. First thing is in the quant section it is quadratic equation. Very good, very good. Any other quadratic equation? Okay. So everyone who is anyone Galaxy J7, I don't know your name, but Hollywood is a quite difficult level. So 40 to 45 is a good range of marks if you are scoring that much. Okay. Okay. So I'm asking to everyone who has given any mock. Do you feel any difficulty in solving quadratic equation, approximation, and inequality type question? Means in how many minutes you can solve all these questions? The main agenda of this session is to complete these three type of question, and mind you, you will get definitely five question of quadratic equation, five question of approximation, and five of inequality. These two are in quant section. This one is reasoning section, right? So if you are able to attempt 15 question in less than 10 minutes of time, believe me, that is too much marks in that time for the equation. Okay, so we'll take it how to solve it rapidly. Yeah, this session talks about mainly how to solve quadratic equation rapidly. Okay, so time is 11:60. चलो स्टार्ट करते हैं. Before starting, who am I? Hello everyone, this is Ashutosh and I'm the quant faculty with Catamania, and this session is mainly about how to score marks, how to score good marks in SYPO in a little span of time, right? So चलो start करते हैं. First thing, पहला आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा पांच क्वेश्चंस आते हैं. You will definitely see five questions, and the main problem with the quadratic equation is there will be two equations. One equation will be like x square plus ax plus b, and second equation will be like y square plus cx plus d. Right? There will be some equation in this way, and you have to compare. आपको कंपेयर करना पड़ेगा x1 x2 जो आपकी
यहाँ से वैल्यू आएंगी x1 x2 y1 y2 को, एंड देन यू हैव टू डिसाइड योर आंसर, राइट. सो अगर आप कन्वेंशनल वे से करते हो, कन्वेंशनल वे, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कन्वेंशनल वे, आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर देना जिसे भी आता है, ठीक है. एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसके रूट्स बताओ क्या होंगे. रूट्स है वैल्यू ऑफ x. 2 1. Okay, okay. Yeah, roots will be -2 and -1. What happens is you multiply these two term. if अगर यहाँ पे कुछ कोएफिशिएंट होता, लाइक यहाँ पे अगर 3 होता, ठीक है, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो उनका प्रोडक्ट आता 6, और फिर जो भी यहाँ पे वैल्यू रखी है आप ऐसे दो टर्म निकालते कि इनका प्रोडक्ट 6 आता एंड उनका सम ये बीच वाली वैल्यू आती है, ठीक है. लेकिन यहाँ पे हमारी इक्वेशन क्या है, आवर इक्वेशन वाज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0. So the multiplication is 2, and the two numbers that satisfies like their product is 2 and their sum is 3 are 1 and 2, ठीक है, are 1 and 2. So what we are doing is we are adding up 1 and 2, right. So जब हमने 1 और 2 को ऐड किया तो रूट आते हैं उनका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना. तो इससे रूट आएगा -1, +1 था, एंड एक और आएगा -2, ठीक है. तो आपने ये क्वेश्चन किया, ठीक है. बट अगर एट दिस प्लेस अगर मैं कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, डिफिकल्ट मीन्स ऐसे, टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 17y प्लस 3 इक्वल टू 0, तो इसके रूट बताओ क्या होंगे. हमने इजी क्वेश्चन थी, राइट, हमने बचपन से सॉल्व करते आ रहे वो इक्वेशन को, तो सॉल्व कर लिया इन लेस देन सम 20 सेकंड. अभी इस क्वेश्चन को अगर करना है तो इस क्वेश्चन के रूट्स बताओ क्या होंगे, मतलब इस क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ y क्या होगी. 2y स्क्वायर प्लस 17y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, जो भी है, मींस एवरीवन हु इज लिसनिंग कुछ भी कर सकते हैं. Apply Sridharacharya. हाँ, apply Sridharacharya, and that is the biggest mistake anyone can ever do in solving quadratic equation in SBI PO. Symbol. Symbol is another thing, but that symbol actually, Raj, the first thing is कि symbol आपको हर कोई पढ़ाएगा. You can go anywhere and anyone can teach you symbol. But आप why I am doing this session, मैं सिंबल नहीं पढ़ाने वाला, बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा. सिंबल आपकी जितनी स्पीड कराएगा ना उससे 10 टाइम्स आपको स्पीड दूंगा इस सेशन के बाद. Yeah, definitely. Equation is 2y square plus 17y plus 3 equals to 0. No. Plus 30 equals to 0. Sorry. Let me. Plus 30 equals to 0. Yeah, I think it took you some time, right? It took you some time to decide that the root are -15 and -2, right? So, क्या प्रोसेस होनी चाहिए कि यही इक्वेशन that we can find these root in less than 20 seconds. क्या प्रोसेस होनी चाहिए, कुछ तो होना चाहिए ना. फिर से पीछे जाते हैं, फिर से रिग्रेशन करते हैं. कहाँ करेंगे, इजी पार्ट की तरफ, कि हमने इजी चीज क्या सॉल्व की थी, हमने इजी चीज ये सॉल्व की थी. Pardon me, there's some problem with the network or there's some problem with the pen mouse, right? So हमने क्या किया था, इन्हें मल्टीप्लाई किया था, तो आया 2, तो हमने इसे फैक्टराइज किया था. वर्ड्स पे ध्यान देना, हमने फैक्टराइज किया था, ठीक है, फैक्टर किया है, हमने 2 और 1 में फैक्टर किया, ठीक है. तो यहाँ पे 3 आया, 2 + 1, तो क्या करेंगे, ये 60 आएगा, 60 को भी हम फैक्टर ही करेंगे, ठीक है.
लेकिन कैसे करेंगे, दैट इज द पार्ट. सो व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, दिस अप्लाइज ओनली व्हेन this value is an odd number. If a is an odd number, then only the shortcut will apply, right? So like if a is equal to 13 or 15 or something else, then only the shortcut will apply. Suppose there is another number here, like c is here, so you will take product of b and c, that must be, and then the two value that whose product is equals to b into c, their sum must be equal to a. So we will go by that method. अभी हमने क्या किया, हमारा जो रिक्वायरमेंट है, आर रिक्वायरमेंट इज ए टू बी ऑड, ए ऑड होना चाहिए, ठीक है. अभी क्विकली एक चीज बताओ, अगर दो नंबर है उनका सम ऑड है, तो दो नंबर कैसे हो सकते हैं, क्या वो इवन प्लस इवन होंगे, क्या वो इवन प्लस इवन होंगे, उनका सम ऑड है, नहीं होंगे ना, हटाओ. क्या वो इवन प्लस ऑड हो सकते हैं, इवन एंड ऑड, वन इवन एंड वन ऑड, हाँ, वेरी गुड. एंड एक और थर्ड थर्ड कैटेगरी ऑड प्लस ऑड, ऑड प्लस ऑड लोगे तब भी इवन ही आएगा, सो दैट इज आल्सो ऑफ नो यूज टू अस. सो आई एम जस्ट लाइक क्रॉसिंग both the things. So what we need is, we need the middle number a to be, one number to be odd and one number to be even, ठीक है, हमें ये चाहिए. अब हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे इसी से, बहुत ही क्विकली करेंगे. So the first question I am going to write is 4x square minus 17x plus 18 equals to 0. Don't you think this, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा खतरनाक है, काफी डरावनी है. मैं तो छोड़ दूंगा, श्री आचार्य ऐसा मैं लगाने पे आया तो छोड़ दूंगा, मैं नहीं करने वाला ऐसी गंदी सी इक्वेशन, ठीक है. तो एक और चीज है कि जब हमारे पास यहाँ पे कोई वैल्यू होती है, लाइक यहाँ पे 4 है, तो जो हमारे रूट आएंगे, जैसे कि हमारे रूट a और b आया, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 4 से डिवाइड कर देंगे. जो रूट आएंगे हमारे वो a/4 एंड b/4 आएंगे, ठीक है. तो बस इतनी सी चीज है और कुछ नहीं है. अभी हमें ये दिख रहा है हमारा ऑड है, ठीक है, 17 हमारा ऑड है, तो हमें ऑड कैसे चाहिए, 80 एंड 4 के प्रोडक्ट से चाहिए. कैसे चाहिए, एक चाहिए हमें ऑड चाहिए, एक चाहिए इवन, राइट. तो हमने लिखा है 18 इंटू 4. अब इसे फैक्टराइज करो तो इसे कर सकते हो ना, 2 इंटू 9 इंटू 4, ठीक है. अभी आप देखो हमारे पास ये एक ऑड है और बाकी इनका मल्टीप्लिकेशन इवन है, तो डायरेक्टली हमारे पास क्या आ गया, 8 एंड 9 आ गया. अगर देखो ध्यान से तो 8 9 का सम 17 होता है एंड 8 9 का प्रोडक्ट 22 होता है. डायरेक्टली रूट आ गया, हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ा. कितना देर, हार्डली लगा, शायद कुछ टाइम लगा. और ओरिजिनल रूट्स क्या आएंगे यहाँ पे, -8 -9 क्या होगा ना, -8 -9. ओरिजिनल रूट क्या आएंगे, 8 एंड 9 डिवाइड कर देंगे 4 से. hardly it will take you like 10 to 20 सेकेंड. एक और क्वेश्चन करते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं. हाँ, एक्चुअली हम फैक्टर की तरफ ही देखते हैं कि फैक्टर का ही तुम सम निकालोगे, फैक्टर से तो मल्टीप्लाई होंगे, उसके बाद तुम्हें रिजल्ट देंगे प्रोडक्ट का ना. अभी जैसे कि ये क्वेश्चन है, ठीक है, अगर तुम सीधा आचार्य लगाओ तो पता चल जाएगा कितना अच्छा टाइम लगता है इसमें. तो इसमें 21 लिखा है, ऑड है, क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली फैक्टर करो. 40 को अब ऑड से करना है तो क्या करते हैं, 5 इंटू 8, ठीक है. 8 टू 16 एंड 5, ये तुम्हारे डायरेक्टली दो रूट आ गए. अल्टीमेटली हमारे रूट क्या आएंगे, 16/2 एंड 5/2. कितना टाइम लगा, हार्डली 10 सेकेंड. एंड अगेन आई एम सेइंग कि ये क्वेश्चन मैंने नहीं निकाला, ये क्वेश्चन SBI PO 2016 पेपर का क्वेश्चन है. मैं इसलिए पेपर का क्वेश्चन डालूं ताकि आप लोग ये लगे कि आई एम डूइंग लाइक, हाँ चलो कुछ भी दे दो यार, बच्चे ही तो हैं क्या, तो
ये क्वेश्चन एसबीआई पीओ के पेपर के हैं। तो अब मैं क्या करूंगा ना, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं सारे क्वेश्चन लिखूंगा एसबीआई पीओ के पेपर के 2016 के, ठीक है। एंड मैं क्या दिखाना चाहता हूँ कि उनमें से 80% क्वेश्चन में ए तुम्हारा ऑड आता ही आता है। किस कोई भी मॉक उठाओ, कोई भी मॉक उठाओ, हमेशा ऑड ये तुम्हारा ऑड ही आएगा, ठीक है। अभी एक दो क्वेश्चन और करते हैं, उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि इससे सो दैट यू आर आल्सो कंफर्टेबल विद डूइंग दिस थिंग एंड एज क्विकली एज आई एम डूइंग। Solve this equation 4x square plus 17x plus 15 equals to 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करो, इसके रूट निकालो। अगेन ध्यान रखना कि ऑड है तो करना क्या है, मल्टीप्लिकेशन करना, थोड़ा फैक्टर सोचना। गुड गुड। सो हुआ क्या, ये 3 into 5 हुआ, ये हुआ 4 हुआ। अभी अभी एक अच्छी चीज आई कि इसमें दो ऑड वैल्यू आ गई, ठीक है, दो ऑड वैल्यू आई। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम दोनों ऑड को हम कंबाइन कर लें, मतलब प्रोडक्ट ऑड ही आएगा, या फिर एक एक ऑड को रखें, मतलब फिर दोनों ऑड को फिर एक एक ऑड को। तो अगर देखो तो ये 15 and 4 आता है, तो इससे हमें 17 नहीं मिलेगा, तो हमें सिर्फ एक ही ऑड चाहिए। पहले ट्राई करोगे तो 5 अलग कर लो, तो 5 अलग किया तो ये हो जाएगा 12, 12 and 5 ये 17 दे देगा। अब 3 अलग कर लो, मतलब पता चली कि आंसर, बट मैं बता रहा हूँ थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आ जाए। 3 अलग किया तो ये 20 हो गया। तो at this place it could have been 23x, तब भी हमारा आंसर आया था। it could have been like 17, it could have been 7x, तब भी हमारा आंसर आया था, ठीक है। तो एक क्वेश्चन से इतनी सारी पॉसिबिलिटी बन जाती है। Yeah, definitely ultimately root will be, this will be the root। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। इस बार अपनी स्पीड चेक करना, जो भी दीक्षित आचार्य बोला था, एक बार उससे स्पीड चेक करना, स्पीड इससे स्पीड चेक करना। हाँ रिकॉर्ड को इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स बताओ। एनीवन एल्स? हाँ, राज कितना टाइम लगा तुम्हें, लगा कि मतलब 10 सेकेंड्स में हो सकता है क्वेश्चन? हाँ, अभी हमें रूट्स निकालना है, फिर से क्या करना है, 3 into 4 into 7 किया। अब इतना तो भाई पता चल जाना चाहिए कि तुम्हें ऐसे ही करना है, ठीक है। दो ऑड है, फिर से दो ऑड वाला चक्कर आए तो क्या करते हैं, पहले दोनों ऑड कंबाइन करो। तो 7 7 7 21 4 नहीं आएगा। आप क्या करो, एक एक सिंगल सिंगल ऑड रखो। तो 4 3 12, 12 and 7, इनका एडिशन हमें 19 दे देगा। तो 12 and 7 किया, रूट्स विल बी -12 and -7 एंड फाइनलाइज रूट्स विल बी डिवाइडेड बाय 3 कितना टाइम लगा, हार्डली, मुझे तो भाई हार्डली 10 सेकेंड्स लगा। कैन आई रिकॉर्ड द सेशन? Actually we are recording this session at our end, so we will upload it on YouTube, so you don't have to be like, you don't have to worry about recording। ओके सो व्हाट, अब क्या करेंगे, अभी एक पकड़ आ गई, ठीक है, कि हाँ ऐसे करना है, ऐसे करना है। अब और क्वेश्चंस करते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। 5y² -21y +22 = 0। अभी वही फॉर्मूला लगाओ, ऑड है, लगाओ, निकालो।
वही मैं कह रहा था, म्यूट कर शुभम। अभी जितनों ने भी आंसर किया है, जस्ट जस्ट टेल मी कि आपसे, जब आप पहले से ये क्वेश्चन करते हैं आप पहले, तो क्या आपको इतना ही टाइम लगता है क्या? जस्ट टेल मी, अगर लगता तो ठीक है मैं कुछ और इम्प्रोवाइज करता हूँ, अगर नहीं लगता तो बहुत ही बेटर है, तो तुमने कुछ सीखा। व्हाट विल बी साइन कन्वेंशन? साइन कन्वेंशन भाई कुछ नहीं, 5 and 22 है, इन्हें फैक्टराइज करो, 22 विल बी 11 into 2, अगेन दो ऑड है, ठीक है, तो 5 to 10 and 11 सिंपल दिखना चाहिए, तो दिख जाएगा, तो 11 and 10। अब एक माइनस में है ना, तो जब दोनों माइनस में होंगे तभी देन ओनली दे विल गिव सम इक्वल टू -21। तो फाइनली क्या हो जाएगा, फाइनली इनका रूट चेंज रहता है, इसका 11 आ जाएगा, इसका 10 आ जाएगा, डिवाइड में ये कर देंगे जो लिखा, सिंपल। कितना टाइम लगा? ज़्यादा टाइम लगा क्या? गॉट इट, थैंक यू। अभी अब अभी व्हाट विल यू डूइंग, आई विल गिव यू वन क्वेश्चन, जैसे आता है एसबीआई पीओ में, कि उसमें क्या होगा, उसमें 5 तुम्हें ऑप्शंस दे देंगे, उनमें से तुम्हें टिक करना पड़ेगा, ठीक है। पहला होता है x इज ग्रेटर और इक्वल टू y, दूसरा होता है x इज लेस और इक्वल टू y, तीसरा होता है x इज ग्रेटर देन y, चौथा होता है x is less than y, and fifth is you cannot determine anything, so it is CBD. CBD is what is, कि अगर तुम्हारा x तुम्हारा बड़ा भी हो, x तुम्हारा छोटा भी हो, इन दैट केस वी विल मार्क CBD, ठीक है। तो एक पूरा क्वेश्चन करते हैं, मतलब जो जैसे SIPO में आता है हमेशा। अभी इन दोनों में आके वैल्यू कंपेयर करो x की, आंसर टिक करो। एंड ये किसी SBI में पेपर में नहीं आया, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जो सिविल से इज डिफिकल्ट। एनीवन एल्स? CBD नहीं, CBD तो आंसर नहीं है भाई। Raj, you try. Anyone else? C. हाँ, we have one correct answer finally. अभी काफी देर में आया, तो I would say कि थोड़ा और, हाँ ये भी सही है। राइट राइट। सो चलो अब सॉल्यूशन करते हैं इसका। Now what I will do is कि मैं फास्टली करूँगा सॉल्यूशन जैसा मैं करता हूँ, so that you grasp my thinking, कि मैं सोचता क्या हूँ, ठीक है। तो ये 3 into 5 into 2 हुआ, ये 6 हुआ, ये 5 हुआ, 11 हो गया, हटाओ। अभी ये 13 आना है, तो 2 into 7 into 3 हुआ, ठीक है। दो ऑड है तो कैसे करते हैं,
हाँ, 2 ऑर्डर तो कैसे करते हैं, 2 इंटू 3 6 होगा, 7 होगा। तो हमें फाइनली रूट पता है, बट फाइनली करना क्या है, इसमें 6 था, इसमें 5 था, इसमें 6 था, इसमें 7 था, इसमें डिवाइड कर दो किससे, सॉरी प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा बाद में आने के बाद, इसे 3 से डिवाइड कर दो, इसे 3 से डिवाइड कर दो, ये भी प्लस होता है, इसमें माइनस हो जाएगा तो ये माइनस लगा दिया, बाद में 2 से डिवाइड कर दो तो 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। इसकी वैल्यू हो जाएगी -2, इसकी वैल्यू हो जाएगी -5/3, इसकी वैल्यू हो जाएगी -3, इसकी वैल्यू हो जाएगी -7/2, which is close to, which is 3.5, -3.5। सो अभी क्या करना है हमें, अभी हमें एक एक वैल्यू एक्स से कंपेयर करेंगे कि क्या है, बड़ा है कि बड़ी है कि छोटी है, ठीक है। दिस पार्ट कैन टेक सम टाइम, लेकिन रूट में टाइम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा है तो बोलते हैं कि सर रूट ही टाइम लेता है, कि अगर रूट निकाल लें तो हमसे वही निकलता, तो हम बाद में क्या कंपेयर हम किसका करेंगे। तो रूट तुम्हारा टाइम देना चाहिए, रूट तुम्हारा, अगर तुम्हारा रूट तुम्हारा 20 सेकंड भी ले लेता है ना, ठीक है, लेकिन ये रूट, सॉरी, रूट तुम्हारा टाइम लेना चाहिए। रूट अगर तुम्हारा 10 सेकंड लेता है, कंपेरिजन तुम्हारा 10 सेकंड लेता है, तो टोटल तुम्हारा 20 सेकंड में ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी कंपेयर क्या करना है, -2, -3 एंड -5, तो डेफिनेटली ये बड़ा है, ठीक है। अभी -5/3, इट वाज -5/3, इट इज क्लोज टू -1.33, -1.3 दोनों से बड़ा है, तो क्या है आंसर, x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y इज आवर आंसर। बस मुझे बताना पड़ा, इसी मुझे इतना टाइम लगा, मुझे 20 सेकंड से ज्यादा ही लगता है सब में। सो अगेन आई एम आस्किंग, थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है कि टाइम बहुत रिड्यूस हो सकता है इस क्वेश्चन में। एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, एंड ऑप्शंस वही रहेंगे। भाई साइन कन्वेंशन का ये देख लिया करो कि सम करके आएगा कि एडिशन करके आएगा, बाकी सेम रहता है, बस साइन चेंज कर दिया करो एट, जब तुम्हें रूट निकालने हुआ करे। हल्का सा प्रैक्टिस कर लो इस चीज को, ये तुम्हें 1 मिनट के अंदर अराउंड तुम्हें 3 क्वेश्चन सॉल्व करा देगी क्वाड्रेटिक के। एंड अगर तुम रूट और किसी तरह से निकालोगे ना, तो डेफिनेटली आई एम सेइंग कि वो बहुत टाइम ले जाएगा, बहुत टाइम, मतलब हो सकता है तुम छोड़ के भी आ जाओ एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन आई डोंट थिंक तुम करोगे, बट अभी करो। अभी ऑप्शंस वही है, ठीक है, पहला तुम्हारा जो था x ग्रेटर इक्वल टू y था, लिख देना मुझे, तुम लोग सॉल्व करो, मैं ये लिखता हूँ। अभी करो, जिसकी जो भी गलती हुई थी लास्ट क्वेश्चन में ध्यान देना, इसे सही करना। टेक योर टाइम, टेक 30 सेकेंड्स। Yeah, so the answer is 32. So here's the answer, first correct answer. Sorry, Ayu has the first correct answer. कितना देर लगा सोहम, आयु कितना देर लगा, कितना देर अभी लगा, कितना देर पहले लगा, आयुष, ओके, इन 30 सेकेंड्स, ओके। पहले कितना देर लगता था, पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करते क्या, मुझे सिर्फ इतना होता, मुझे जानना नहीं है कि तुम कितनी देर लगाते करते। अराउंड 1.20, तो काफी अच्छा डिक्शन हुआ है। तो इसका ये है ना, 2 into 2 into 3 into 5, ठीक है। तो अगेन हमें सिर्फ एक ही और चाहिए, तो एक बार हम इसे कंबाइन करेंगे इवन के साथ, तो 3, 12 एंड 5 हो गया आंसर। सिंपल क्या करना है, -12 एंड -5 डिवाइड करना है 4 से, इसका क्या है 19, ये 3, ये है 28, राइट इट 3 एंड 4 एंड 7, ठीक है। इसमें फिर से इसमें 2 ऑड है, क्या करना है हमें कि एक ऑड को देखेंगे,
तो 3 4 एंड 17 हमारे रूट्स आ गए। कितना देर में? हार्डली लगा भाई मुझे 10 सेकेंड, और दोनों क्वेश्चन के रूट आ गए। हाँ, 5 के 6 7 मिनट। मुझे नहीं लगता कि अब शायद तुम्हें इन 5 क्वेश्चन के तुम्हें 3 मिनट से ज्यादा लगेगी। ट्राई कर लेना। मैं अभी एसवीआईपीओ का पेपर खोलूंगा एक लास्ट ईयर का, उनमें ट्राई करना। तुमसे बोलूंगा नहीं कि तुम फालतू के कोई मॉक सीरीज से करो, मैं बोलूंगा डायरेक्टली एसवीआईपीओ ट्राई करो। उसके क्वेश्चन होने चाहिए, बाकी हो चाहे ना। सबको समझ में आ गया ना भाई मैंने क्या किया, मैंने रूट्स कैसे निकाले? कंपेरिजन तो तुम लोग भी कर लोगे ना। सबको समझ में आ गया ना? यस। ओके, चलो अब क्या करते हैं, अब डायरेक्टली पीओ का पेपर ट्राई करते हैं कि और दूसरी जगह से कराने से अच्छा है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन ट्राई करें जो मतलब एक्चुअल में पेपर के है। रिकॉर्डिंग रहेगी भाई, रिकॉर्डिंग से अच्छा अटेंड कर ले आई वुड से। वेल रिकॉर्डिंग रहेगी, ज्वाइन लेट ब्रो। वेल रिकॉर्डिंग रहेगी, वी विल अपलोड द रिकॉर्डिंग ऑन आवर यूट्यूब चैनल। Okay, okay, everyone. So who is online? Please be with us. And I think there is some. This meeting will end in like 2 minutes. So what I will do, I will create a new link. Okay. So join by that link. Okay. So we are ending this particular link. We are leaving this particular link, and we will send you the new link in less than 1 minute. Right. So please be with us. Please send me. Definitely, definitely. एवरीवन रहना, एक्टिव रहना। बस 1 मिनट के अंदर हम लोग नई नई लिंक आपको दे रहे हैं, ठीक है?